کریم نے قرآن مجید میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے کچھ حصے میں سیر کرائی اور مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک سیر کرائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑی ہی شانیں عطا فرمائی، بڑی عظمتیں عطا فرمائی۔ ان عظمتوں میں سے ایک بہت بڑی عظمت کا نام واقعہ معراج ہے۔ میرے بھائیوں، جب سے امت کے اندر خیالات تقسیم ہوئے ہیں، اپنی اپنی رائے لوگوں نے قائم کی ہے، تو کچھ ایسے ذہنوں نے بھی کچھ اختراعات ایسی بھی زمانے میں وضع کی ہیں۔ کہتے ہیں جی حضور کی تعلیمات زیادہ بیان ہونی چاہیے، نبی پاک کی شان بیان کرنے کا کیا معنی؟ یہ میلاد کا جلسہ، معراج کی محفل، حضور کی عظمتیں، شانیں، یہ کیوں بیان ہوتی ہیں؟ سوال یہ ہے ان دوستوں سے کہ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، محبوب بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، دی ہے اللہ نے، دی ہے اپنے نبی کریم کو۔ یا اللہ تو دینے والا ہے، رسول لینے والے ہیں، ہمیں کیوں بتا رہا ہے؟ اس بات کو سمجھیے گا، اللہ دینے والا ہے، حضور لینے والے، قرآن میں کیوں ذکر کیا؟ تو رب فرماتا ہے تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم معمولی محبوب کے ماننے والے نہیں، اس محبوب کے ماننے والے ہو جنہیں اللہ نے بڑی ہی خیر کثیر عطا فرمائی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو یا اللہ یہ بات تو محبوب سے کہہ لیتا اکیلے میں، ہمیں کیوں بتائی؟ قرآن میں کیوں ذکر ہوا؟ یہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میں امت کے لیے کیا ہے؟ تو فرمایا تمہارے لیے یہ ہے کہ تم اس محبوب کے ماننے والے ہو جن کے ساری دنیا میں چرچے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر بھی لگائیے تیری ہی داستان ہے، کان جدھر بھی لگائیے تیری ہی داستان۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی عظمتوں کا بیان، حضور کی شانوں کا بیان، نبی پاک کے تذکرے، وہ اس لیے ہیں تاکہ امت مسلمہ سر اٹھا کے جیے اور وہ لوگوں کو بتائیے۔ ہمارے حکمران کئی دفعہ جب پاکستان کا اور یورپ کا موازنہ کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے بڑے شرمندہ ہیں، پاکستان میں پیدا ہو گئے، بڑے پریشان ہیں، ان کو بڑی تکلیف ہے۔ کاش یہ موازنہ اس طرح کرتے کہ وہ یورپ والے عیسائی اور یہودی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں محبوب کریم کی امت میں پیدا فرمایا، تو پھر ان کا معیار اور ہوتا بات کرنے کا، پھر ان کے لفظوں میں وہ کمزوری نہ ہوتی۔ دیکھو نا پاکستان میں کتنے حملے ہوئے، کتنے زیادہ مسجدوں میں بم پھٹے، کبھی کو حکمران آیا کیا وہ مل کے جمعہ پڑھتے؟ لیکن نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے یہ کام کر کے کمال نہیں کر دیا؟ ہمارے تو ابھی تک وہ سائیوال کے یتیم بچوں سے ملنے کوئی حکمران نہیں گیا، کوئی نہیں گیا، اس لیے کہ یہ قوم تو ایسی ہے، ہمیشہ لائنوں میں لگ کے ووٹ دیتی ہے۔ ان کا کیا ہے؟ انہوں نے کل پھر گاڑیوں کے پیچھے اسی طرح بھاگنا ہے، جیبوں سے اسٹیکر بنوانے ہیں، اشتہار چھپوانے ہیں۔ یہ تو مطلب بھیڑ بکریاں دو چار مر جائیں تو کیا حرج ہے؟ یہ ہمارا سٹیٹس ہے، ہمارا۔ ان کا کیا ہے؟ ان کو تو پتہ ہے کہ ان کو کیسے یوز کرنا ہے۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا اور آج بھی کہتا ہوں، نمبر پلیٹ بدلنے سے گاڑیاں نہیں ہوتی، گاڑی بدلے تو پھر اس کا نظام بدلتا ہے، بدلنا ہے تو اس کا انجن بدلو، نمبر پلیٹیں نہ بدلو۔ یہاں نمبر پلیٹیں بدل کے وہی گاڑیاں دوبارہ روڈ پہ چھوڑ دی جاتی ہیں۔ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ تو یہاں تو تباہی اتر رہی ہے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرمائے۔ تو یہ شرمندہ ہو کے جو لوگ باتیں کرتے ہیں نا، معاذ اللہ کمزوری دکھاتے ہیں، یہ اس کمزوری کو دور کرنے کا بہترین علاج یہ ہے کہ ہر گلی میں، ہر کوچے میں، ہر نگر میں میرے مصطفیٰ کی عظمتیں بیان کی جائیں۔ اور جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے بیچارے جو کہتے ہیں واقعہ معراج سمجھ میں نہیں آتا، تو ان کو میں پوچھتا ہوں کہ تمہیں تو اپنا وجود بھی سمجھ میں نہیں آتا، کیسے سانس لیتے ہو؟ معدے کا کون سا نظام ہے؟ نظام انہضام کیا ہے؟ جگر کہاں ہے؟ تمہارے وجود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں تو آج تک اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکا، تو رب رسول کے معاملات کو سمجھنے چلا ہے۔ اپنی چھوٹی سی عقل کو اتنا پریشان نہ کر ورنہ تو الجھ جائے گا۔ کہتے نہیں سمجھ میں نہیں آتا جی کیسے گئے، کس طرح گئے، کیوں کر کے گئے؟ تو نبی پاک نے تو کہا ہی نہیں میں گیا ہوں، حضور نے تو بعد میں کہا ہے میں گیا ہوں، پہلے تو رب فرماتا ہے سبحان الذی
जो लेके गया है वो हर ऐब से, हर नुक्स से पाक है। वो जो भी बयान करता है हक और साची बयान करता है। एक जमाने तक ये जो दहरी किस्म के लोग थे ना, अकल के पुजारी, एक जमाने तक ये कहा करते थे कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त हवा में कैसे उड़ता था। 80 मन उसका वजन था, तो वो हवा में कैसे उड़ता था जी। कुछ लोग उस पे बैठे होते थे, फिर भी वो हवा में उड़ता था। हमारे उस जमाने के उलमा उसका जवाब देते थे, वो तख्त जी हवा में कैसे उड़ता था। बड़ा इतराज होता था, बड़ी उस पर बातें होती थी। अब नहीं आप सुनते होंगे कोई बात, क्यों भला? अब हर रोज जहाज उड़ता है और उस तख्त से ज्यादा वजन लेके उड़ता है। 500 550 सवारी होती है, हर सवारी का 2-2 मन वजन भी होता है। और जब पायलट ऐलान करता है ना कैबिन से कि हम 38,500 फुट की बुलंदी पे जा रहे हैं, तो कोई शख्स इतराज नहीं करता। अब छोड़ गए हजरत सुलेमान के तख्त पर इतराज करना, इसलिए कि सारे ओढ़ ओढ़ के आते जाते हैं। अब जरा ठहर गए, अब ये टेंशन खत्म हो गई कि हजरत सुलेमान का तख्त कैसे उठता था। फिर एक नया इतराज शुरू हो गया, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। इतना छोटा सा कंकर और इतना छोटा सा बाबील और इतने बड़े हाथी को कंकर मारे, तो इतने से कंकर से हाथी कैसे मर जाता है? बड़ी परेशानी भाई, हाथ कंकर छोटा हाथी बड़ा कैसे मर गया? फिर अल्लाह ने फजल किया तो बंदूक की गोली आजाद हो गई। कहने लगे नहीं नहीं, प्रेशर से लगे तो हाथी मारी जाता है। अब उसके बाद दोबारा इस बात पर एतराज नहीं करते। पहले कहते थे कि इंसान कैसे जाता है, क्यों कर जा सकता है, मुमकिन कैसे है, ये मतलब कैसे हो गया, मिराज कैसे हुई। तो फिर एक बंदा चांद से तो हो आया है, और जिसने वो बंदा चांद पे उतारा है उसने कहा है कि ये आखिरी मंजिल नहीं, इससे आगे भी इंसान जा सकता है। तो मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया तुम तो अब जाने की बातें करते हो ना, जहां तक मैं हो आया हूं तुम सोच भी नहीं सकते। कोई रह फलक उत्ते यार गया, कोई जा सिदराते हार गया, एक कालिया जुल्फा वाला सी जड़ा लंघ अर्शां तो भी पार गया। तुम नहीं ना जा सकते, तुम कच्ची बातें, कमजोर बातें। और एक और बात मैं आपको अर्ज करूं, नबी करीम अलैहिस्सलाम के लिए काम इतना मुश्किल नहीं था जितना कौम समझती है ना। हमारे अपने कुछ नादान दोस्त हैं, अपनी अकल छोटी होती है तो वो उस अकल में क्या क्या आएगा। इतनी कुछ चीज होती है उसमें उतना ही सामान आता है ना। तो अपनी अकल छोटी होती है तो बजाय इसके कि वो ईमान ले आए अल्लाह की हिकमतों पर, वो अकल के तराजू पर छोटी सी अकल को परेशान करते हैं। छोटा सा दिमाग होता है, हर वक्त टेंशन में रहते हैं, वो जी कैसे गए, किस तरह करके गए। तो मैं कहता हूँ नबी करीम के लिए ये मसला ही कोई नहीं, हुजूर के लिए ये कोई मसला। हुजूर फरमाते मैं तो उस वक्त भी नबी था। ये तिरमिजी में है, तिरमिजी है, सियासता की हदीस। ये समझे कि दीन है, ये अकीदा है, इसको समझा करें। पर मैं तो उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम की मट्टी गूंदी जा रही थी। तो महबूब तो पहले भी उन सारे नजारों को जानते हैं, हर चीज हुजूर की नजर में है। और उसके बाद भी, उसके बाद का जो माहौल है वो भी अनोखा है। बदर में एक औरत का बच्चा शहीद हो गया, सियासता में हदीस है, हुजूर की बारगाह में आई। नबी करीम मिंबर पे बैठे आके अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बेटा जिहाद में शहीद हो गया, मुझे बताएं वो कहाँ है। अगर जहन्नम में है तो मैं रोऊंगी, आहुजारी करूंगी, अगर जन्नत में है तो मैं शुक्र अदा करूंगी। हुजूर बताएं। तो जन्नत उधर का मामला तो क़यामत के बाद है, ये तो दूर की बात है। मदीने में बैठकर, मस्जिद नबी में बैठकर बीबी ने सवाल कर दिया। हुजूर ने नहीं फरमाया कि बीबी ये तो क़यामत में पता चलेगा ना। हुजूर बेटा कहाँ है? हुजूर ने यूं नजर उठाई, फरमाया बीबी जन्नतें हैं 8, जो सबसे आला जन्नत है ना वो अल्लाह ने तेरे बेटे को अता फरमाया। सबसे आला जन्नत में है तेरा बेटा। मरहूम आदम चिश्ती ने जुमला कहा तो उन्होंने कमाल कर दी। कहने लगे ऐसा कोई महबूब कहीं होगा न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। और एक जुमला इतना शानदार है, इतना शानदार है कि मैं जब पढ़ता हूँ तो मैं मरहूम के लिए दुआ करता हूँ। उन्होंने कहा कि तू जो चाहे तो हर शब हो मिसाले शबे असरा। महबूब अगर आप चाहे तो रोज मिराज हो, तू जो चाहे तो हर शब हो मिसाले शबे असरा। इसलिए कि तेरे लिए 2-4 कदम अर्श बरी है, तेरे लिए 2-4 कदम, तेरे लिए 2-4 कदम अर्श बरी है। और कहने लगे हर एक को मुयस्सर कहाँ उस दर की गुलामी, उस दर का तो दरबान भी जिब्रील अमी है, उस दर का तो दरबान भी जिब्रील अमी है। और मिलता नहीं कौनैन को क्या क्या तेरे दर से, एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये कोई मुश्किल नहीं। जिस तरह हम उलझे हुए ना कि मतलब कैसे, तो किस तरह, तो किस अंदाज में, तो वहां ये कोई खाता है ही नहीं। हुजूर के लिए तो 2-4 कदम है, जब चाहे जब चाहे। वो एक साहब थे
मुझे कहने लगे कि वो जी हुजूर तो गए थे, हजरत जिब्रील लेके थे परों पे बिठा के, पहले बुराक पे गए थे, फिर हजरत जिब्रील के परों पे, फिर रफ पे, वैसे को नहीं ना बशर जा सकता। मैंने कहा चलो मेहरबानी करो, तुम भी किसी दिन बुराक पे बैठ के चक्कर लगा जाओ, को कोशिश करो ना यार, किसी जगह पे ठहरो तो सही। अजीब फलसफा। कहते हुजूर, तो मैंने कहा चलो वो तो रफ थी, हजरत जिब्रील के पार थे, बुराक था, तो वो जो नबी पाक बाद में 9 मरतबा गए और आए, हुजूर 50 नमाजें लाए ना, तो हजरत मूसा ने कहा कि महबूब नहीं पढ़ी जाएगी, तो हुजूर गए, 5 की माफी हुई, फिर आए, तो हजरत मूसा ने कहा कि महबूब नहीं, ये नहीं होगा। ये भी नबी पाक की फर्मा बरदारी है अल्लाह की बारगाह। हुजूर नहीं कहते ठीक है या अल्लाह तो 50 कहता तो 50 ही होगा। हजरत मूसा ने कहा महबूब नहीं, आप कहें, आप कहें। और ये हजरत मूसा के दिल में बात भी अल्लाह ने डाली, ये भी अल्लाह ने डाली कि आप मेरे महबूब से कहें, उन्होंने नहीं कहना, उनको तो जो कह दिया जाए कबूल है। हुजूर वापस गए तो 9 चक्कर लगाए नबी करीम ने। इसका मतलब है कि अब वो 9 चक्कर हुजूर गए और आए तो वो हजरत जिब्रील के परों पे लगाए थे। किसी जगह किसी रवायत में मिलता है कि हुजूर ने फरमाया जिब्रील इधर ला, दोबारा बुराक फिर जाना है, इधर पार दोबारा ला या बुराक दोबारा ला। 9 दफा गए और 9 दफा आए। फिर मान लो कि तेरे लिए 2-4 कदम अर्श बरी है, तेरे लिए 2-4 कदम अर्श बरी है। महबूब की अजमत को समझो। हुजूर जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जिस वक्त चाहे, जिस वक्त दिल चाहे, ये तो मेरे महबूब का आना जाना है, ये तो रसूल पाक का आना जाना है। हुजूर का जब जी चाहे आए, जब जी चाहे जाए। हुजूर नमाज पढ़ा रहे थे, ये सही मुस्लिम की हदीस है। मुसलमानों, सारी जिंदगी आंखें खोल के, दिल खोल के, खुशबू की तरह महक कर, फूलों की तरह ताजा तरो ताजा रह के जिंदगी गुजारो, इसलिए कि रब करीम ने तुम्हें शानों वाला रसूल अता फरमाया है। तबीयतें ठंडी रखो, मिजाजों में सुकून रखो, खुश हो जाया करें हुजूर का। आप यकीन करें, किसी जगह महफिल मिलाद लिखा होता है तो तबीयत ठंडी हो जाती है कि यहाँ मेरे नबी की नाते पढ़ी जाएगी। किसी जगह महफिल मिलाद लिखा होता है तो तबीयत ठंडी हो जाती है, यहाँ हुजूर का जिक्र होगा। ये ना अपने दिल में शौक पैदा करें। जो लोग कहते हैं ना बड़े दुख है, तो हुजूर की नात सुन के राजी होना सीखे, अल्लाह उन्हें सुख अता फरमाएगा। जो कहते हैं बड़े परेशान रहते हैं, तो वो हुजूर के दुरूद और सलाम से राजी होना सीखे, अल्लाह सुकून अता फरमाएगा। सगियो याद रखो, जो कहते हैं कि दिल बेकरार रहता है, अपने दिल को हुजूर की तारीफ से जोड़ ले, रब तेरे दिल को सुकून अता फरमाएगा। खुश होना सीखे, हुजूर का नाम सुन के ठंडा होना सीखे, तबीयतों को, कलेजों को ठंडा करना सीखे, अल्लाह राहत अता फरमाएगा। लेकिन अगर बहस ही बहस करनी है तो कैसे जी, किस तरह जी, किस हाल में। अब मैं बड़ी तनकीद करता हूँ पैसे लेने वालों, तय करने वालों पर, तो कई दफा तकलीफ भी बड़ी होती है। एक बंदा बड़ी प्यारी नात पढ़ रहा था, बड़ी प्यारी, मैं भी स्टेज पे मौजूद था, तो एक साहब से मैंने कहा कि यार आज तो मजा आ गया, कलाम सुनने का लुत्फ आ गया। तो कहने लगा इसने 40,000 भी लिया हमसे। तो मैंने कहा यार ठीक है, अगर उसने ले ही लिया है तो तुम्हें बहस करने की क्या जरूरत है, जितनी अच्छी वो नात पढ़ रहा है ना, मेरे ख्याल में 40,000 भी थोड़ा है, इसको ज्यादा देनी चाहिए। और अगर उसने ले लिए, अब दे दिए, तो अब बहस करने की क्या जरूरत है। अब तो मजा लेना चाहिए कि मेरे नबी का जिक्र कर रहा है। वो जो ले दे रहा है वो अल्लाह उससे हिसाब ले लेगा ना खुद ही क़यामत में। ये हम भी शिकवा करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन शिकवों में आके हमने नात तो नहीं ना छोड़ देना, हुजूर का जिक्र तो नहीं ना छोड़ देना। अब इसके नीचे आके वो अपना जायका लेना, तो मैंने पहले भी आपको बताया था, फिर बताता हूँ। मैं मस्जिद नबवी शरीफ में ना सलाम करने के लिए हाजिर हुआ। अब तो मेरे जैसे बंदों को नकाब करके जाना पड़ता है ना, उस वक्त जरा जल्दी चले जाया करते थे, मौका मिल जाता था। तो मैं ना सलाम से दाखिल हुआ तो एक बाबा जी बड़े सादे से, पगड़ी भी सादी, तबीयत भी सादी, तो अपनी मौज में वो जा रहे हैं। नवाज शरीफ पे हाजिर हुए तो उसने कहा चल हाजी निकल, धक्के देते हैं ना, उनकी मौज है, वो धक्के दे रहे। तो पापा बड़ा राजी है, यानी तबीयत बताती है, जिसने राजी रहना होता है, जिसका दिल करता है राजी रहने को, अल्लाह तौफीक भी दे ही देता है। और कुछ बेचारे दुनिया में आई परेशान रहने के लिए, उनका प्रोग्राम ही नहीं खुश होने का, इल्ला माशाअल्लाह। उनको बड़ी टेंशन होती है, इधर से भी टेंशन, इधर से भी टेंशन। कोई हंस के मिला तब भी टेंशन, ना हंस के मिला तब भी टेंशन, परेशान ही रहते हैं, मिजाज बन जाता है। बाबा जी बड़े फ्रेश थे, बड़ी तबीयत ठंडी, उसने धक्के दिए, कहा चल हाजी अल्लाह। तो पापा पता क्या कहते हैं, कहते तेरी खैर हो गए पहरेदार, रोजे दी जाली चुम लैन दे। तो कहा चल निकल, कहता तेरी खैर हो गए पहरेदार, रोजे दी जाली चुम ले। मैंने उस बाबा जी से बड़ी तरबियत ली, मैं जब भी उनको याद करता हूँ मेरा दिल बड़ा ठंडा होता है। फिर उसने तीसरा धक्का दिया, चल निकल। पापा फिर कहता तेरी खैर हो गए पहरेदार, रोजे दी जाली। और वो बंदा बिल्कुल अरबी नस्ल था जो धक्के दे रहा था, बाहर निकले, मुझे भी धक्का दिया बाबा जी को, हम बाहर निकले। तो मैं क्या बाबा जी, उनको तो थोड़ी भी समझ होती सी,
कहते पुत्र मैनू भी पता है मैं अपना रांझा पे राजी करता और मैनू पता है उन्होंने नहीं समझ आ रही, मैंने पता है उन्होंने की पता, मैं तो पंजाबी च लगा अपना। तो भाई जिसने रांझा राजी करना है ना उसने रांझा राजी कर ही लेना है। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो छोटे से बच्चे को खड़ा करके कहते बेटे मौला का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आता है चल सुना मेरा पुत्र। वो बच्चे ने उसको कसीदा सुनाया तो बाबा जी 10 रुपए दे के अपना रांझा राजी करके निकल गए। जिसने इतराज करना है वो सारा दिन इसी चक्कर में पड़ा हुआ है, 50 लिया 40 लेते हैं। वो भाई तू वो लेता है ना तो उसको जान छोड़, तू ये देख के तेरे महबूब का जिक्र करता है, तू रसूलुल्लाह की बात सुन। अब सुनना तो इन्हीं से है ना, हम दुआ करते हैं अल्लाह इन्हें भी तौफीक की हिदायत अता करे, ये पैसे लेने वाले सियाने हो जाए। और सारे लेते भी नहीं, तू उनसे सुन लिया कर जो नहीं लेते, सुन तो सही ना, अपना रांझा तो राजी करना, शौक तो बेदार कर, तबीयत में ठंडक तो पैदा कर। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम की जो शानें हैं, हुजूर की जो रिफतें हैं, नबी पाक की जो बुलंदियां हैं, रसूल पाक की जो हुजूर को अल्लाह ने इकराम दिया है, वो गुलाब की तरह तबीयत को महका देता है। जब हम चीजें पढ़ते हैं तो तबीयत ठंडी हो जाती है। हमारे हज़रत साहब का तरीका था, कोई हुजूर की शान वाली रवायत पढ़ते ना तो रात को किताब पे निशानी लगा लेते और सुबह ना वो किताब पकड़ी होती तो वो कहते हैं इधर आ भाई ये देख क्या लिखा है काजी इयाज साहब ने, ये देखो क्या लिखा है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला क़यामत के दिन मेरी सिफारिश पढ़ना 70,000 उम्मतियों को बगैर हिसाब किताब ही जन्नत में दाखिल कर दे। यानी उनसे खड़ा करके पूछेगा भी कोई नहीं कि क्या किया, क्या 70,000 बगैर हिसाब किताब। ये देखो कितनी शान वाली बात। तो वो ठंडा करना चाहते थे ना अपने दिल को, तो उनके दिल ठंडे हो जाते थे। एक बात सुनना तो तबीयत फूलों की तरह महक जाती। एक हदीस पढ़ते थे तो उसी के सुकून में रात को सो जाते थे। प्रोग्राम बनाए कि हुजूर की जब तारीफ हो, जब मौका तो फिर तबीयत ठंडी हो। सुने मैंने कहा 2-4 कदम अर्श भरी। नबी करीम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा रहे थे, जोहर की नमाज थी, असर की नमाज थी, सही मुस्लिम में मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं नमाज पढ़ाते पढ़ाते नबी पाक ने कदम आगे किया, नमाज पढ़ाते पढ़ाते कदम आगे किया और यूं हाथ उठाया फिर वापस कर दिया। अब नमाज पढ़ के ना तो सलाम फेरा तो सहाबा अर्ज करने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नमाज में पैर भी आगे किया, वो हाथ भी उठाया, तो वजह क्या थी? पहला सवाल तो ये है कि आप लोग नमाज पढ़ रहे थे या हुजूर को देख रहे थे? तो सहाबा तो पहले ही बताते हैं कि भाई हम तो पहली सफ में नमाज इसलिए पढ़ते थे कि नमाज भी होती रहती थी और चुपके चुपके महबूब की दीद भी होती रहती थी। हुजूर से पूछा या रसूलल्लाह वो नमाज पढ़ते पढ़ते कदम आगे बढ़ाया आपने तो फिर पीछे कर लिया क्या था, और हाथ उठाया तो फिर आपने नीचे कर लिया। तो नबी करीम फरमाने लगे नमाज पढ़ाते पढ़ाते जब मैंने कहा ना समी अल्लाहु लिमन हमीदा, अचानक मेरी नजर उठी तो जन्नत में चली गई। नजर उठी तो जन्नत में, तेरे लिए 2-4 कदम अर्श भरी है। तो महबूब फरमाते जब मेरी ऊपर नजर गई ना तो मैंने देखा कि अंगूरों का एक खोशा लटक रहा है जन्नत में, तो मैंने हाथ बढ़ाया कि तोड़ लूं। हुजूर खड़े हैं मस्जिद नबवी में और फरमाते हैं कि मैं यहाँ खड़े होके हाथ ऊंचा करूं तो मेरा जन्नत तक पहुंच जाता है। फरमाया मेरा इरादा हुआ कि वो खोशा जन्नत का तोड़ लूं, और जरा मैंने पैर आगे बढ़ाया ही था तो मेरे दिल में ख्याल आया कि जन्नत राज है, तो राज ही रहनी चाहिए, ये राज खोल गया तो मजा नहीं आएगा। तो मैंने फिर वो हाथ वापस कर लिया। सहाबा कहते हैं जब नबी करीम ने ये बयान किया तो हमारे चेहरे ने तजस्सुस से खेल उठे, तजस्सुस से हम कोई बात और भी सुनना चाहते थे। तो महबूब फरमाने लगे अगर मैं वो खोशा तोड़ के ले आता और तुम्हें दे देता, तुम कयामत तक भी खाते रहते तो तुमसे खत्म नहीं होना था। ये सही मुस्लिम की हदीस है। ओ भाई मेरे रसूल करीम के वाक़े में राज पे शिकवा करना, कहना समझ में नहीं आती कैसे गए थे। तो तू जो चाहे तो हर शब हो मिसाले शब असरा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मैं उम्मे हानी के घर में सोया हुआ था, कोई आने वाला आया, उसने मुझे जगाया। और जो लफ्ज़ हदीस में बड़े शानदार है, महबूब फरमाने लगे जिब्रील अमीन कहने लगे या रसूलल्लाह चलिए रब आपकी मुलाकात का शौक रखता है, अल्लाह आपकी मुलाकात का शौक। यहाँ भी बड़ी परेशानी होती है बाज़ लोगों को, क्यों इतने परेशान होते हैं, कहते हैं जी हुजूर तो हजरत जिब्रील से मिल के वापस आ गए। हजरत जिब्रील से मिल के ना नबी करीम वापस आ गए। मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि अगर हुजूर अल्लाह से मिल ले तो किसी बंदे का इसमें नुकसान क्या है, क्या मतलब टेंशन किस बात की है, इतनी परेशानी, इतनी इतनी मोटी किताबें लिखनी कि नबी पाक ने अल्लाह को नहीं देखा, हजरत जिब्रील से मुलाकात करके हुजूर वापस आ गए। यानी मैं समझना चाहता हूँ, मेरी समझ में आया नहीं, मैंने बड़ी अकल दौड़ाई है कि अगर हुजूर अल्लाह को मिल ले, मुलाकात हो जाए, कुरान कहता है वजूह यौम नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, क़यामत के दिन चेहरे चमकेंगे इसलिए कि अपने रब का दीदार करेंगे। मैं भी करूंगा इंशाअल्लाह, आप भी करेंगे।
चेहरे चमकेंगे इसलिए कि मोमिन अपने रब का दीदार। वो मेरे भाई अगर हर मोमिन दीदार कर सकता है, और कुरान कहता है नबी करीम अलैहिस्सलाम अगर अल्लाह करीम का दीदार करके वापस आए तो इतनी ज्यादा परेशानी अल्लामा साहब को, शेख को इतनी टेंशन, इतने ज्यादा वो बाजार हुए कि छोटी किताब नहीं हुई। और इधर से दलील लाए खींच के, उधर से दलील लाए, अल्लाह का तो इदराक ही कोई नहीं कर सकता, देख ही कोई नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं था। हुजूर तो गए थे तो जिब्रील से मिलने। तो मैंने कहा आपको गलती लग गई वो इसलिए कि शेख मुहक्किक शाह अब्दुल हक साहब मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह लिखा है कि किसी नबी के पास हजरत जिब्रील सिर्फ 11 मरतबा है, और किसी पैगंबर के पास 21 मरतबा है, किसी के पास 30 मरतबा है। और नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत जिब्रील अमीन ने 24,000 मरतबा हाजिरी दी है। 24,000 मरतबा, 24,000 मरतबा है हजरत जिब्रील। तो हजरत जिब्रील तो रोज सवेरे यहाँ होते थे, उनको मिलने जाने के लिए इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, वो तो रोज खड़े होते। बल्कि अल्लामा सफूरी ने एक बड़ी शानदार बात लिखी है, ये तो नबी करीम की बात है ना, मौला अली शेर खुदा। आप फरमाते एक दिन हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ना इंसानी शक्ल में, जब हुजूर ने फरमाया ना कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है, तो फरमाते जब ये रवायत हुजूर ने ये हदीस बयान फरमाई तो हजरत जिब्रील इंसानी शक्ल में ना हजरत अली शेर खुदा के सामने आके खड़े हो। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम खड़े हुए और फरमाने लगे अली सुना है इल्म के शहर के आप दरवाजे हैं। तो मौला अली फरमाने लगे मुस्तफा करीम ने फरमाया है। तो कहा अच्छा पर अगर आप इल्म के शहर के दरवाजे हैं तो बताएं भला इस वक्त हजरत जिब्रील कहाँ है। कहते जो तो जिब्रील को मिलने गए थे तो हजरत जिब्रील मौला अली के सामने खड़े, कहने लगे बताइए इस वक्त हजरत जिब्रील कहाँ है। तो मौला अली शेर खुदा, जब आप अपने बड़े को कोई बात बताएंगे ना जिनका अदब करना हो अपने बुजुर्ग को, तो फिर आप फटाफट नहीं कह देंगे आपको पता ही नहीं। ये मसला है, बुजुर्गों को आपने को बात समझानी हो तो अल्फाज का चुनाव, और ये भी हमें शेर खुदा ने अदब बताया, अल्फाज का चुनाव शानदार होना चाहिए, लफ्ज बड़े जबरदस्त तश्कील पाने चाहिए, जुमलों की तरतीब बड़ी मुअद्दबाना हो। हजरत जिब्रील अमीन ने पूछा कि बताइए अली इस वक्त हजरत जिब्रील कहाँ है। तो हजरत मौला अली शेर खुदा ने पहले ऊपर देखा, मेरी तरफ देखना, पहले ऊपर देखा, फिर नीचे देखा, फिर पीछे देखा, फिर आगे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा। ये नहीं फरमाया कि आप जिब्रील हैं, वो तो इंसानी शक्ल में थे ना। जुमले देखिए, अदब देखिए, तरीका देखिए बात करने का। हजरत अली फरमाने लगे भाई हजरत जिब्रील इस वक्त ना तो आसमानों में है, ना जमीनों में है, ना मशरिक में है, ना मगरिब में है, ना शिमाल में है, या ना जनूब में है। फरमाने लगे जी वो इस वक्त कहीं भी नहीं है। फिर भी फौरन नहीं कहा कि आप खुद ही तो है, ये नहीं फरमाया। कहने लगे या आप जिब्रील है या मैं जिब्रील हूँ, दोनों में से एक जिब्रील है, अब फैसला कर ले। तो हजरत जिब्रील मुस्कुराए, तर दामनी पे शेख हमारी ना जाइए, हम तो दामन नचोड़ दे तो फरिश्ते वुजू करे। हजरत जिब्रील मुस्कुराए और फरमाने लगे आप तो वली है, जिब्रील तो मैं ही हूँ। आप तो वली है, जिब्रील तो ओ भाई ये हाल है उनके गुलामों का, ये हाल है उनके गुलामों का, तो मेरी सरकार का आलम क्या होगा। कहते जी हुजूर गए और मिल के ना हजरत जिब्रील से तो वापस आ गए। तो मैंने कहा आप ना परेशान हो, अगर हुजूर अल्लाह से मेल भी ले तो आपका फायदा ही है, नुकसान कोई नहीं, आपका कोई नुकसान है, कोई नुकसान नहीं। नबी करीम अलैहिस्सलाम तो फरमाते हैं जब रब करीम ने कहा ना अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, मेराज की रात, अस्सलामु अलैका, ये जो ताहियात आप पढ़ते हैं ये मेराज का तोहफा है। जब कहा ना अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए नबी आप पर सलामती हो। हुजूर फरमाते हैं रब ने मेरे सामने मुझे बिठा कर कहा, सामने या रसूल अल्लाह आपने रब को देखा, फरमाया रही तो रब्बी बिअहसन सूरा, मैंने रब देखा है और बड़ी सोहनी सूरत में देखा है, बड़ी सोहनी सूरत में सामने बिठा के कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, महबूब आप पर सलाम हो मेरे नबी, रहमत हो बरकत हो। तो हुजूर फरमाते रब ने तो मुझे सलाम कहा था, मैंने कहा नहीं अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, या अल्लाह जितने भी मेरी बात मान के नमाज पढ़े उन सब पे भी सलाम भेज। तेरा तो फायदा हो रहा है रब रसूल की मुलाकात में। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, ऐ अल्लाह जितने भी साले लोग हैं उन सब पर सलाम, उन सब पर। तो ये तो मिराज में तेरी मेरी बात। अल्लामा इसमें लकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 90,000 बातें की अल्लाह ताला ने अपने नबी से मिराज की रात, इतनी। अल्लाहु अकबर। मजेदार बंदा मिल जाए तो बातें करने का मजा आता है, शर्त यह है कि बंदा प्यार वाला हो। लेकिन अगर बंदा इस तरह का हो कि जिसने हर बात में टेंशन ही पैदा कर दी है,
उसको दिल करता है कि बंदा दुआ दे के कहे कि ये आप तावीज़ ले जाए तो 21 दिन के बाद दोबारा आइएगा। ये होता है। वो मेरे एक बुजुर्ग थे, कुछ लोगों को तावीज़ देते तो कहते 3 दिन के बाद आना, कुछ को तावीज़ देते तो कहते 21 दिन के बाद आना। मैंने उनसे कहा अब यहाँ 21 दिन वाला टेंशन ना ले लें कि 21 वाला शायद तावीज़ ही नहीं होता है, लेकिन वो मोहब्बत वाले थे ना, तो तरबियत करते थे बातों की। तो मैंने उस बंदे के सामने पूछ लिया, मैंने कहा हज़रत साहब तावीज़ एक ही है, उसको 3 दिन के बाद और इसको 21 दिन का वक्फा। कहने लगे ये मुझे टेंशन बड़ी देता है। उसके सामने कहने लगे तू बैठा था, मैंने 21 कहा, वरना मैंने 121 कहना था, तो तू बैठा है। बंदा देखे ना, बात करें आप तो थोड़ा सामने वाले को भी सुने, थोड़ा उसकी बात भी सुने, बोझ ना बने। थोड़ा आप देखें, गौर करें, किसी भी महफिल के अंदर बोझ ना बने। आप कोशिश फरमाएं कि तरतीब इस तरह की हो कि सामने वाला पसंद करे आपसे बात करना। मुसलमान तो फूल होता है, वो जहां जाता है खुशबू ही छोड़ के आता है। ऐसा ना हो कि मतलब आप आए तो कहें जो मुझे तो किसी ने रिसीव ही नहीं किया, मेरी तो अहमियत खत्म हो गई, कोई प्रोटोकॉल ही नहीं है, कोई पूछने वाला। इससे नुकसान होता है, इससे सामने वाले को भी आप परेशान करते हैं, अपने आप को। कोशिश फरमाए, देखे ना अल्लाह रसूल की मुलाकात भी एक रात की और 90,000 बातें। और अल्लामा इसमें लकी फरमाते हैं कि रब करीम ने फरमाया मामूद 30,000 का सारी उम्मत को बताना। हुजूर ने बताइए आके 30,000, उसमें नमाज भी है, अत्तहियात भी है, हजरत बिलाल हबशी का मकाम भी है। नबी करीम ने यह भी फरमाया कि मैं ना मेराज की रात महल भी देख आया हूँ, उस पर उमर बिन खत्ताब का नाम भी लिखा हुआ है। 30,000 बातें हुजूर ने आकर बयान फरमाई और कहा मामूद 30,000 बातें ना खास लोगों को बतानी, खास। हर बंदे का हाजमा दुरुस्त नहीं होता। वही सालन खा के कुछ कहते हैं बड़ा मजा आया, कुछ कहते हैं सारी रात नींद ही नहीं आई। हालांकि मामला होता है हाजमे का। हर आदमी दुरुस्त हाजमा नहीं रखता, तो लोग हाजमा सही कराने की बजाय सामने वाले की हांडी सही कराते रहते हैं। उसको कहते रहते हैं कि तू लहसुन ज्यादा डाला कर, वो भाई तू अपने हाजमे में थोड़ी मेहनत कर, सुबह बात किया कर, नहीं सही खाया कर, फिर भी ना ठीक हो तो सुबह शाम सबको इस्तेमाल किया कर, उसके छिलके से फायदा ले। ये सारा इतराज सामने वाले की हड्डियां पे ही है। नबी करीम सल्लल्लाहु, ये जो हाजमा खराब हो जाता है, फिर बंदा टेंशन लेता है, कहता है नहीं जिब्रील से मिले थे, अल्लाह का दीदार ही नहीं किया, वो तो बस ख्वाब का मामला था, ख्वाब में गए थे, ख्वाब में। भाई मैं आपसे कहता हूँ कि मैंने रात को ख्वाब देखी है पाकिस्तान का सदर बन गया, तो आपको कोई परेशानी है? क्योंकि ख्वाब में मैं अमेरिका का भी बन जाऊँ तो आपको क्या टेंशन है? ख्वाब जो हुई, हुजूर अगर फरमाते मैं ख्वाब में गया हूँ तो किसी काफिर को कोई परेशानी होती थी? क्यों कच्ची बातें करते? ख्वाब वाली बात ही कोई नहीं। और कहाँ कुरान पाक में आया कि ख्वाब में सैर कराई? सुबहान अल्लाजी असरा बिअब्दिही, बंदा खास को सैर कराई। कुछ पंजाबी के लोग इतनी शानदार बातें करते हैं कि मजमून समेट देते हैं। एक दरवेश ने कहा था सी मिराज एक राज, सी मिराज फौहा इला अब्दिही माऊ, हमने अपने बंदा खास से बातें की जो भी की। कासी मिराज एक राज मुहब्बतां दा नहीं सी हर एक दी समझ विच आउण वाला। कुछ कहंदे ने बंद दरवाजे सन, गया किवें सी अर्श ते जान वाला, ते अमर दखल की इथे अकल दा ए जाने जान वाला या ले जान वाला। तू इतना क्यों परेशान है? जाने जान वाला या अल्लाह कहता है मैं ले गया, हुजूर कहते मैं गया। ये डीजे बैठ के फैसले कर रहा है, नहीं जिब्रील से मिले थे, नहीं वो तो बस ये अल्लाह की तो मुलाकात ही नहीं, वो तो ख्वाब में गए थे। तुझे बड़ी परेशानी है, तेरी परेशानी कुछ समझ में नहीं आती। बिला वजह ये कुछ लिबरल किस्म के लोग हर बात को अकल के तराजू में तोलते हैं। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले गए और मेरे बुजुर्गों ने एक बात की है जो बड़ी शानदार है। अल्लाहु अकबर। कुछ चीजें सारी किताबें खंगालने से भी नहीं मिलती, और रब करीम का बंदा बोलता है तो कमाल कर देता है। वो असल में किताबों सुन्नत का निचोड़ ही बयान करते हैं पर कमाल कर देते हैं। कमाल। कुर्सी पर, वजीर आजम की कुर्सी पर बैठना इतना मुश्किल नहीं जितना कुर्सी छोड़ना मुश्किल है। जो आज के जब वजीर आजम बने, डिक्टेटर भी बने, तो उन्होंने बाद में सियासी पार्टियां बना ली कि शायद दोबारा कुछ अकल चल ही जाए। मिस्र में एक ऐसा वक्त गुजरा है कि जिसको बादशाह बनाते थे, जब उसकी मुद्दत खत्म होती थी ना, उसको कत्ल कर देते थे। भाई मारते क्यों? वो कहते ये साजिश करेगा दोबारा बनने के लिए। ये ऐसा लुत्फ है कि ये जाता नहीं। वो मेरे भाई, ऊपर जाना कमाल नहीं होता, ऊपर जाके उस लेवल पर बैठकर गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों के पर तवज्जो रखना, अपने माहौल को न बदलना। यकीन करें दुनिया में ऐसे बहुत सारे वक्त आते हैं कि इंसान बड़ा ऊंचा उठ सकता है, बड़े उसे फिर मनसब बदलते हैं, जगह बदलती है, आफरें होती है, वो जहां मर्जी जा सकता है, लेकिन अपने आप को खड़ा रखना एक मुश्किल मकाम होता है। और भाई पुराना सज्जन मिल जाए तो लोग, वो क्लास फेलो जो कभी पढ़ा करता था, तो लोग कहते हैं साढ़े पिंड च रहिंदा